بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. چھڑا دے جیسے تو نے مجھے چھڑا دیا تو سب کو چھڑا دے. میری دعا ہے کہ اللہ جیسے تو راستہ مجھے صحیح پہ ڈالا کو تو ڈال دے. رزق کی کمی سے تو ہو رہا ہے تو نواز دینا, تو نواز دے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے خریب بھی نہ جانے. یاد ہے سمجھ گئے؟ اب کرو گے شادی کو جا کے گے بڑے پیلس سے بڑی دھوم کی ہو رہی چلو جی جا کریں گے شراب کیا مزے کیا آرکیسٹرا کیا مزے چل رہے ہیں گانے او چلو اچھا لگتا ہے ذرا جا کریں گے. قریب بھی نہ جانا. جیسے میں گئی تھی بہن کی بچے کی بیٹی کی شادی میں آرکیسٹرا چل رہا ہے تم پریشان ہو. یہ تو مجھے نہیں معلوم تھا. مجھے السلام علیکم آ گئی رزو کا ہے نہیں ہے گھر آئی کہاں چلی گئی. تمہارے گھر بجانا ہو رہا ہے تو نہیں کرے تم نہیں کرے تم نہیں ناچے تم نہیں کرے یہ سب کیا بلالاپن کر کے دکھا رہی ہو. بلالاپن نہیں کری میرا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نہیں کرنا. تب ہمیں معلوم نہیں تھا ابھی معلوم ہو گیا. اب اپنی شادی مناؤ میری بربادی مجھے نہیں منانا. میری بربادی مجھے بنانا نہیں ہے. اللہ کیا کہتا ہے قریب بھی نہ جانا. ایگزامپل میرا کیوں دے کے بتا رہی ہوں. میں ذلیل بھی ہو رہی ہوں اب یہاں پہ شرم بھی آ رہی ہے مگر ڈر بھی رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے. گناہ کر کے بتانا نہیں ہے مگر سکھانے کے حساب سے. آپ لوگ کہتے ہیں بجی کیسا بجے ایسا نہیں بجی ویسا. میں اپنی دلیل آپ کو دے چکی. ٹھیک ہے قریب بھی چھونا کھانا بعد میں قریب بھی نہیں جانا. ٹھیک ہے. آج سجا فتقون من الظالمین. اگر تم قریب جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. کیا ہوگے؟ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ان کو اترو. پھر شیطان نے ان کو پھسلایا ان کو نکلوایا جنت سے اور اتر جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کہا اور زمین میں ٹھکانا دیا ایک وقت تک. آدم علیہ السلام نے اللہ سے چند کلمات سیکھے پھر دعا قبول ہو گئی. اتنا ہی سورے میں لکھا ہے. لوگوں کی دماغ میں آتا نہیں سمجھتے نہیں ہیں. سورہ الاعراف کھولو. بولے السلام علیکم. بولے الاعراف. ہمیں سمجھ نہیں ہے قرآن کریم کی. ہر کوئی پڑھ لیتا ہے ہر کوئی پڑھانے بیٹھ گیا ہے ہر کوئی بیان کرنے کھڑ گئے ہیں کہ ہمیں آتا ہے. نہیں سمجھنا ہے سمجھ کے سمجھانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ میں یہاں سے شروع کری ہوں دوسرے پیر سے آیت نمبر 7 یا 8 سے شروع کروں انشاءاللہ. 8 سے کروں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کا وزن اور اعمال کم ہوا وہ گئے کام سے. جس کا زیادہ ہے اعمال نیکیاں ہم پڑھ چکے تھے نا. لاسٹ ویک کیا پڑھے تھے؟ سورہ یونس پہ پڑھے تھے آیت نمبر 20-7 میں پڑھے تھے. 20-7 ہی نا. سورہ یونس 20-7 میں پڑھے تھے. جو نیکیاں برائیاں کرو گے تو برائیاں سے آپ کو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے. اب یہاں پہ اگین سٹارٹ ہو رہا ہے ٹاپک. اوکے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کا ہلکا وزن ہوگا وہ نقصان میں رہیں گے. وہ یظلم نا انصافی اللہ نہیں کرتا کیونکہ تھے ہماری آیاتوں سے نا انصافی کرتے. آیتوں کو جو لے کر سمجھ کر نہیں چلتا ان کے لیے کنفرم جہنم ہے. کنفرم بک کی گئی ہے بنائی گئی سیل مار دی گئی ہے. آیتوں کو پڑھ کر ابھی لوگ بیان کر رہے ہیں جی بیان بڑا اچھا کرتی تھی ان کی کہانیاں ان کی کہانیاں ان کے قصے ان کے قصے. نہیں قرآن میں جو نبیوں کے قصے سے سمجھایا گیا ہے وہی طریقہ ہمیں اپنانا ہے سننا ہے اور سنانا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یظلمون اب یہاں پہ آیا. اب اس سے پہلے ابلیس کو کیا بولے؟ ظالموں میں جمع ہو گیا. یہ ورڈ کو نوٹ ڈاؤن کرو. ہم اگر کسی کو ظلم کریں گے جہنم میں جائیں گے. ظلم سہیں گے تو بھی گنہگار ہوں گے. دو چیز کا بھی میں کلیئر کرتی ہوں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اس میں بے شک ہم نے تمہیں زمین پہ ٹھکانہ دیا تمہیں زندگی کے سامان دیے ہے نا. کسی کو کم کسی کو زیادہ کسی کو بہت زیادہ سامان دیے ہیں اور تم بہت کم ہو شکر کرنے والے. پلیز میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اگر پلاسٹک کی بینگل اگر دیے اللہ تعالیٰ ہم شکر کریں گے. کانچ کی بینگل دیے شکر کریں گے. سونے کی دیے شکر کریں گے. پیتل کی دیے شکر کریں گے. ہیرے کی دیے شکر کریں گے. کیونکہ جیسے میں اور آپ مریں گے تو نکال لیں گے جسم سے. دعا کریں گے جنت میں پورے سامان دے. یہی دعا کرتی ہوں لا دنیا میں جنت کے جیسا گھر دیا تمہیں جنت بنا کے دیا مجھے آخرت میں دے دے اللہ. مجھے آخرت میں دے دے اللہ. مجھے آخرت میں دے دے اللہ. میں مر جاؤں گی تو دوسروں کا ہو جائے گا نا. چلا جائے گا نا. چلا جائے گا نا. مجھے آخرت میں دے دے میرے مولا.
मुझे जन्नत में तो दे दे अल्लाह, दुनिया में तो दिया है, आप शुक्र करो कि दुनिया में थोड़ा कम दिया ना अल्लाह, जन्नत बहुत बड़ी दे अल्लाह ताला, बहुत बड़ा दे अल्लाह ताला, तो मांगते रहा करो। फिर अल्लाह ताला कहते हैं फिर उसके बाद कम शुक्र, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, मोहम्मद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, आए मास, अपने गुलाम को एक सहाबा को कहा, मास तुम मेरे साथ अगर रहना चाहते हो, जन्नत में आना चाहते हो, तो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, हाथ मिला के, हाथ पकड़ के, गले में लेके प्यार से, दिल करता है कि अल्लाह काश हम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हो जाते हैं, काश उनके कदमों में बैठे रहते, पर्दा ही करके पूरे नकाबा पूरे डाल देते, उनको नहीं देखने का हुक्म देते तो देखते भी नहीं, मगर पास तो इतना दिल करता है ना, तब अल्लाह ने शुक्र करें हम लोग, मरने के बाद तो देखेंगे ना, दीद भी है ना, दीदार भी है ना, आबे कौसर भी है ना, शराब भी अल्लाह के हाथों से, आबे शराबी तहूरा है ना, ये है ना। रोजे हो, आज कौन कौन रोजे है, मैं करती जाऊंगी हर बार में हाथ उठाना, कौन कौन रोजे हैं, कौन कौन रोजे हैं? क्यों नहीं है आप, आपकी महवारी की आप गिनती क्यों नहीं शुरू करें, कम से कम 12 में एक शुरू करो, मौत आ गई तो माफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे समझो कितने की रोजे हैं, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, किसी औरत के कितने की रोजे हैं, वो रोजे रखते रखते उसके रोजे 500 रोजे रहे, अगर उसने 50वें रोजे में मर गई, 500 रोजे उसके माफ कर देंगे अल्लाह ताला। अब जो उम्र हो गई है, माए हैं, आप फिक्र नहीं करो कब तक रहेंगे, नहीं करो, वारम में एक रोजा लिखना शुरू करो, अगर 50 में मौत आ गई या 100 में मौत आ गई, 40 माफ कर देंगे। अगर नहीं रखेंगे, एक भी रोजा रहकर कोई मर गई, नियत अगर कर ली है कि मैं पूरी जिंदगी के अदा करूंगी, नियत के ऊपर पूरी आपको माफी मिल जाएगी। अल्लाह का वास्ता देती हूँ, आज जिंदा मैं भी खड़ी हूँ, कल मेरे दोनों आंखों को अल्लाह ताला ने, एक मेरी ब्रेन की वेन, आंखों से पानी फ्लो नहीं हो रहा था, मुझे नहीं मालूम, ये बच्ची की मैंने रख को अल्लाह ने पकड़ाया, वो क्या दुआ किसकी लगती है नहीं मालूम है, मेरी ब्रेन की वेन क्या हो रही मुझे नहीं मालूम, कल मुझे लेजर किया गया दोनों आंखों में, मुझे खुद नहीं मालूम लेजर क्या होता, ऑपरेशन बोल के मुझे नहीं मालूम, मैं समझी एक्सरे होता है, एक्सरे होता है कुदरत, तो मेरी वेन को इमीडिएट खोला गया, बोले इमरजेंसी खोलना है, फट से होना, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कहीं में खाना बने, जो भी करना करिए, अपना कर रही हो, कि मैं मर गई तो मैं रात को सहरी नहीं करी, मैं दवा आंखों में नहीं डाली, क्यों मर जाऊंगी क्या, मैं खत्म हो जाऊंगी क्या, मैं चली गई तो अच्छा है ना, मौत अच्छी है ना, रोजे की हालत अच्छी हो ना तेरी मोहब्बत में, ऐसी मोहब्बत हमें करना है, दर्द में भी सहना है, हर तकलीफ को उठाना है, हर आफत को लेते चलना है। आपको तकलीफ नहीं है, औलाद का गम नहीं है, आपको नहीं है, मुझे नहीं है, आप सबको नहीं है, फिर भी वी लव यू अल्लाह ताला, ये मोहब्बत है, हम चाहते हैं, प्यार करते हैं तुझसे, ये नहीं देखो हमें कब मार देगा, अरे क्या होगा, अल्लाह 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 नहीं होता, झुकना नहीं, नहीं नमाज बाकायदा से कुछ नहीं होता, कि हुक्म की मुझे मालूम भी नहीं वो क्या कर रहे हैं, पढ़ी लिखी हूँ, समझ नहीं आई मुझे लेजर का मतलब क्या है, ऑलरेडी करके एग्जाम लड़ रहा है मेरे साथ, क्या करके आई थी मुझे नहीं मालूम, मेरे अल्लाह ने मुझे नहीं दी हिदायत, अल्लाह ताला करना था कर दिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम, अभी हो गया ना। तो आपको मैं गुजारिश करती हूँ, चाहे आपसे भीख मांगती हूँ, मिन्नतें करती हूँ आपसे, आप रोजा रख लो, एक रोजा मुझे भी खैरात मुझे दे दो, ताकि तुम जन्नत को आओगे, तुम्हारे लिए मैं रास्ता दिखाऊंगी तो मुझे जन्नत मिलेगी, नहीं तो मुझे नहीं मिलेगी, भीख मांगने में मैं कमी हो जाऊंगी, एक रोजे तुम्हारे सवाब मुझे आते रहेंगे, तुम्हारे नस्लों से आते रहेंगे, अल्लाह का वास्ता देती हूँ। चलो नफिल रोजे का मैं तरीका बताती हूँ, आपको मालूम नहीं है, सहरी को नहीं उठे, आज फोन आया मुझसे 10 बजे फोन आया, नजर तुमने नियत नहीं की अब तक रोजे की रोजा रख सकते हैं, बाकायदा रख सकते हैं, क्या दलील है आपके पास, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नियत नहीं करे थे रोजे की, नफिल रोजा, फर्ज की बात नहीं कर रही हूँ, दोबारा दोहरा रही हूँ, फर्ज रोजे की बात नहीं कर रही हूँ, नफिल रोजे की बात कर रही हूँ, मैं फर्ज रोजे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नवाफिल की बात कर रही हूँ। अल्लाह के नबी एक बीवी के पास जाते, आयशा तुम्हारे पास खाना है खाने के लिए, अल्लाह के रसूल कुछ भी नहीं है खाने के लिए, छोड़ो आयशा मैं आज रोजा रह जाता हूँ, जब तक उन्होंने नियत नहीं किए थे रोजे की, जब खाना नहीं था तो रोजे की नियत करे थे, एक दिन रोजा रख लिए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखने के बाद आपने एक बीवी के घर गए, मुझे खाना है क्या खाने के लिए, बोले हाँ खाने के लिए है, छोड़ो आज मैं
खाना खा लेता हूँ, आज मैं रोजा तोड़ देता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम करके, ये अमल करके हमें सिखाया गया है, ये तरीका कर सकते हैं। रात को अपनी नियत देखिए, सुबह को उठे 9-10 बजे, आपने खाया नहीं है, कुछ भी नहीं रात को खाए, गोली भी खाई नहीं होगी शुगर की, बीपी की, हार्ट की, किसी की कोई बात नहीं। गोली वो देता है तो मरते हैं, गोली से कोई मरता नहीं। वो गोली देता है तो अल्लाह ताला खींचता है तो रूह को, जो रूह को खींचता है तो वो गोली देता है ना, उसमें मरता है इंसान, इसमें मरता नहीं है। आप सेहतमंद हो जाओगे, नियत करके रोजा रख लो, आप अपनी मर्जी है। मैंने भीख मांगा है, आपके उस्ताद ने कुछ मांगा है, आपके टीचर ने कुछ मांगा है, एक बहन ने कुछ मांगा है, भिखारी आके भीख मांगता है तो देते हो, मुझे भीख नहीं दोगे, भीख नहीं दोगे मुझे, अल्लाह के नाम से खैरात नहीं करोगे, एक रह जाओ ना उसके नाम से भूखे, रह जाओ ना, रख लोगे। अगर मैं करूंगी वो अमल आपको नहीं करवाऊंगी, मैं होंगी मुसलमान? हूँ? होंगी? नहीं होंगी। ठीक है, हम पूरे मिलके अमल करेंगे, साथ अल्लाह से हम राजी कराएंगे। फिर अल्लाह ताला ने कहा है, तुम कम शुक्र करा, माँ अल्लाह ताला को कहा था, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। हम हर सजदे में करते हैं। इसका और एक तरीका बताया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हम की एक जन्नत है, ऐसी है कि अंदर से सब कुछ नजर आता है, बाहर करके देखो तो अंदर, मेरे घर के अंदर क्या रखा है, बोलो अल्लाह हमें वो घर दे दे, हम तो अल्लाह घर दे दे, हमारा अल्लाह दे देंगे, वो जरूर देंगे, यकीन के साथ मानते हैं तो सब नजर आएगा जन्नत के अंदर क्या रखा हुआ। वो कब मिलेगी? जब अगर शौहर सता रहा है, तंग कर रहा है, वो तकलीफ दे रहा है, बेटी सता रही है, बेटा सता रहा है, पड़ोस सता रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं क्या करी अल्लाह, मुझे कहीं को करा, तो ऐसा नहीं करना था, मुझे ही क्यों करा तूने, ऐसा नहीं करना था, आप हमारे साथ ऐसा करे नहीं करना था। कल ही कोई आए थे जवानी में, हमारे बच्चे को हमारे आंखों के सामने मौत नहीं देना था, जब तुम्हारे पेट में बच्चा आया था तुमको मालूम था? नहीं मालूम था, तो उसकी अमानत वो ले लिया, सब्र करोगे तो जन्नत में तुमको जन्नत दी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, यानी तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खाना पक गया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीख गई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से सीखी मैंने? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाला खाते बिस्मिल्लाह, खाके अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आगे बढ़ो, शुक्र करोगे कम या ज्यादा? अल्लाह ने कहा खलीला, खलीला भी नहीं रहना, ठीक है, कलीलन मा तशकुरून, बहुत कम जो तुम शुक्र करते हो। फिर अल्लाह ने कहा, हमने तुम्हें पैदा किया, हमने तुम्हारी शक्ल सूरत बनाई। आदम अलैहिस्सलाम को नहीं कहा अल्लाह ने, नोट डाउन, हमने, और से देखो बाजी, सब देख के बताओ, गलत है तो मुझे सही करो, पढ़ो, पढ़ के देखो, गलत है तो सही करो। अल्लाह ताला कहते, खलकनाकुम, कुम तुम सबको, हमने तुम सबको पैदा किया, फिर हमने तुम्हारी शक्ल और सूरत बनाई, फिर हमने कहा फरिश्तों को, आदम को सजदा करो। समझ रहे हो? आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट के अंदर हम पूरे थे, सही है? हाँ, आप तो उलमा को पढ़ाते हो, मदरसा चला रहे हो, आप सब जानते हो, इल्म सब जानते हो, बोलो सही है गलत है? सूरह अल आराफ आयत नंबर 172 में अल्लाह ने क्या कहा था? क्या कहा था? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? पीठ पे से निकाले, पढ़ो भाई ना, अब पीठ में से निकाले, पूरों को निकाले, अब यहाँ दलील और एक मिल गई। हम अगर सबको पैर पड़वाएंगे, आप अभी भी सजदा करवाएंगे सबको, फरिश्तों से सजदा करवाया आदम अलैहिस्सलाम को, तुम सबको पैदा किया, अल्लाह कह रहा है आदम अलैहिस्सलाम। ये सब मारिफत इसको कहते हैं, मारिफत इसको कहते हैं जो समझने वाला समझे। आज किसी को पैर छूने नहीं देती मैं बच्चों को, एक स्टूडेंट ने कहा भाई एक बार छू लो, निकल जाओ, गेट आउट, गेट आउट, प्यार भी नहीं, गेट आउट। इतना दीन समझा कर, इतना तुम्हें अखलाक बताकर मेरे पैर क्यों पड़ना चाहते हो? मेरे कदम खुद आग में होंगे, अल्लाह चाहा तो आग से बचाकर जन्नत में चलाएगा, जहन्नुम पे हम पूरे चलेंगे, अनबिया भी चलेंगे, आग पे चलना है मुझे और आपको। क्यों ऐसी बात है? ठीक है, आपके कदमों को बच्चों को सब छूने नहीं करा। हाँ, बच्चे माँ के कदम छू सकते हैं, माँ के कदम पकड़ सकते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा माँ के कदम को क्या बोला है? पकड़ लो,
मजबूती से पकड़ लो, उनके रास्ते पे चलो, माँ को इजाजत मिली हुई है, ठीक है। मगर सबको पैर पकड़ना छोड़ दो, पैर पकड़वाना छोड़ दो, एक गुनाह है, कबीरा है। अपने आप को सजदे नहीं करवा लो कि हम वहां पे गुनहगार हो जाएंगे। फिर कहा क्या, तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, सजदा करने वालों में न था। उसने कहा, इब्लीस ने कहा, अल्लाहुम्मा गफिरली, देखो मेरा अरबी था, मेरा पैर लग गया, मैं चूंकि पपिया नहीं दी मैंने, क्यों, वो गुनाह है, ये नबी के खिलाफ है, मैंने उसको बोसा नहीं दिया है, अपने हाथों को बोसा दिया, तो ये गुनाह मैंने क्या कहा, अल्लाहुम्मा गफिरली, अल्लाह तो मुझे माफ कर दे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बात आती है, तुझे हुक्म दिया, तू मुझे, जब मैंने तुझे हुक्म दिया तो मुझे किसने मना किया, मैंने दिल में नियत की अल्लाह को खाने की, सजदा ना करे, वो बोला मैं उससे बेहतर हूँ, मुझे आग से बनाया है, उसे मिट्टी से बनाया है, मैं क्यों उसे सजदा करूं। अब मैं क्या बोलती, अरे क्यों भी गरीब के साथ मैं क्यों बैठूं। अब तुम्हारे घर में काम करते हैं, कोई रिश्तेदार है, एक प्लेट लेके आओ, नहीं और आपके एक प्लेट लेके आओ, पानी लो, नहीं बा मैं नहीं पीती, खाना ले निवाला कर लो, नहीं बा मैं नहीं खाती। आप पूरी बहनों में से हैं, यहाँ पे करते हैं ऐसे, नहीं किया करो क्योंकि झूठा ले जाएगा। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, मुंह बना रहे, हंस रहे हैं, सब बैठे हैं यहाँ पे, मुझे मालूम है कौन है, वो भी मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला दूध को, अनस गुलाम, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुलाम देते हैं, जाओ सबको बुलाओ, कई अपनी उम्मत को पिलाते हैं, उम्मत को पिलाते हैं, सारी उम्मत पीती है, बाद में रोजादार जो रहते अबू हुरैरा पेट को जो पतरे बांधे थे वो पीते, और एक बार, और एक बार, 3 बार पिलाए, अल्लाह के रसूल अब तो जगह नहीं, पी नहीं सकता। आखिर में सारी उम्मत का झूठा मेरे नबी ने किया है, कुर्बान उस नबी पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वारे जाएं उस नबी पे, कुर्बान उस नबी पे, हम उसकी उम्मत है, हम उनकी उम्मत है, वो अदा लेके आओ, झूठा खाओ, झूठा खिलाओ। कोरोना मुझे नहीं लगा झूठा, तब भी खाती थी, तभी भी हाथ मिलाती थी, तभी भी गले मिलाती थी, नहीं आए, मैं बोली अगर आना लिखा है जरूर आएगा, कोई ताकत नहीं रोकेगी, नहीं लिखा है किसी सूरत से वो नहीं होगा, ठीक है। पिलाओगे पियोगे, सुन्नत करोगे, एक प्लेट में खाओगे, झूठा नहीं बोलो, लड़के खाओ ना, मजाक मजाक है, ये जी इतना मेरा जी, ये इतना जी ये ले लो जी, ये तुम खा लो जी, चलो आज एक काम करें, दावत प्लेटों में करें कि बड़े ट्रे में करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट आएगा दावत, बड़े ट्रेस लाती हूँ, आज लाई नहीं हूँ, नीचे है इंशाल्लाह, क्या आज ही कर दे, लेके आ जाओ, या अल्लाह आज ही कर दे, आज ही कर दे, आज का आज, कल उम्मीद नहीं है, ठीक है इंशाल्लाह। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें फिर बात होती है यहाँ पे, अल्लाह ताला क्या कहे, यहाँ पे क्या बात करी मैंने आपको, आग से पैदा किया। हाँ आग से पैदा किया, तुझसे बेहतर हूँ, मैं क्या बोलती, ए हमें पेंशन पहुंचेगा, मैं जयमन रखी बा, मैं टाली रखती हूँ, जब तू मरती है तो तेरा कब्रिस्तान टाली रोड, जब मुझे मदीने मुनव्वरा में, टाली रोड वैसा ही एरिया, मदीने मुनव्वरा में कचरे पड़े होते हैं, लोग पॉटी करके जाते हैं, बोले वहां भी डाल दो, मगर मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर ना डालो मुझसे, मुझसे दूर ना डालो, क्योंकि उनके दीन पे मैं रहकर मर के जाना चाहती हूँ, जब मैं मरूं तो वहां पे मरूं जहाँ नजर ना आए मेरा, मेरी खबर किसी को पहचान ना हो, कहाँ अंधेरी हो, हम ऐसे अमल करेंगे हर हाल में, अपने रब से मोहब्बत करेंगे, वो प्यार से देख ले, मुस्कुरा के देख ले हमको, वो खुश होके देख ले। मैं कहती हूँ, मैं जब मुझे दर्द हो रहा था, जब तकलीफ हो रही थी, मैं कह रही थी मेरे पास कोई भी नहीं, बेटा बेटा वहां पे है, मैंने कहा या अल्लाह तेरे ठोकर में एक जहां है, तू कहा है ना सातों जमीन के ऊपर आसमान, सात सात आसमान के ऊपर अर्श, अर्श के ऊपर आयतल कुर्सी के ऊपर एक तेरा कदम मुबारक, बाकी तेरी ठोकर में भी हूं ना, मेरे सर पे तेरा कदम है ना, शुक्र है, अभी भी याद करो अपने रब को, तेरा कदम है ना अल्लाह, तेरा कदम है ना अल्लाह, तेरा कदम है ना, तेरे कदम मुबारक है ना, ये बाकी कितना और बड़ा कोई नहीं जानता, कभी खड़के यूं देखते इतना बड़ा दुनिया, इतनी बड़ा, मैं कैसे समझू अल्लाह तू कैसा है, एक नूर है अल्लाह, तू पूरा नूर ही नूर है, नूर ही नूर है, नूर ही नूर है, रोशनी चमक रही है,
पीस, उसके ठोकर में जहां है, उसके ठोकर में सब कुछ है। किससे क्यों मांगना, उससे मैं मांगती हूँ रिजक। मैं कमी में नहीं हूँ, मुझे बर्बाद करना चाहे तो नहीं हो सकता। इस मदरसे को बर्बाद करने वाले खुद बर्बाद हो गए, मगर ये मदरसा कभी बर्बाद नहीं होगा। अल्लाह का घर कभी नहीं मिटेगा, मिटाने वाले मिट गए। अल्लाह ताला माफ करे या सजा दे, वल्लाहु आलम अपने बंदे। फिर आपसे मिट्टी से फिर अब अल्लाह ने कहा यहाँ तुम उतर जा, उतर जा, यहाँ से उतर जा। और उतर जा, तेरे लिए लायक नहीं है कि तू गुरूर तकब्बुर करे, तू आग से बना हुआ है, बस निकल जा, बेशक तू जलीलों में से है। सौगिरी, जालिम जलालत करता है, जालिम जलालत करता है। जो इंसान अल्लाह की बातों को नहीं मानता वो जालिम है, वो जालिम है। वो बोला मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे, जरा गौर से सुनना, उस दिन तक मोहलत दे दे जिस दिन मुर्दे उठाए जाएंगे, कयामत तक की मोहलत दे। शयातीन को मौत, क्या बोलो है, शयातीन को मौत है नहीं है, कयामत तक नहीं है उनको, उतने मजबूत है। मगर ये है इलाज, नास फलक, उनकी बात लगाते हैं। बेशक तू मोहलत, अल्लाह ने कहा फरमाया हौला, फरमाया बेशक तू मोहलत मिलने वालों में से है, क्योंकि उसने इबादत किया, हर जगह इबादत किया, आसमान के कोने कोनों पे इबादत की, उसका अजर जा बेकार है। तुझे मोहलत दी गई, वो बोला जैसे तूने मेरा गुमराह होने का फैसला किया है, तूने मुझे किया ना, खुद मैं बैठा रहूंगा, मैं बैठा रहूंगा, मैं बैठा रहूंगा। कहाँ पे, तेरे नेक राहों पे, सिरातकल मुस्तकीम, तेरे सीधे रास्ते पर, नमाजों की जगह, कुरान की जगह, ये दीन की जगह, हर वो जगह, हर नेक काम की जगह, हर नेक बात की जगह मैं बैठा रहूंगा। ठीक है, मैं बैठा रहूंगा सीधे रास्ते पे, फिर उन तक जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, गारंटी, गारंटी। अब डरती नो लोगों शैतान, मैंने डरती, कितने खड़े आते हैं भागते रहते हैं, कैसे कैसे सबकी इलाज भी हो गए, शायद बड़े बड़े जिंदगी भाग गए, कैसे बड़ी आलिम नहीं, इल्म कुरान है। ठीक है, क्या कहते हैं, मैं जरूर आऊंगा, बैठा रहूंगा खानदान को लेकर, मेरे कुंबे को लेकर, मैं अकेला नहीं बैठता, पूरा खानदान लाता हूँ। यूनिटी शैतान में इंसान में नहीं। शर्म की बात, हया की बात, हंसता खुश हो जाता होगा नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, मगर चंद है, अल्लाह ने कहा है वो यूनिटी वाले हैं। और हमने भीख मांगा ना आपसे, दुआ करो मैं यूनिटी वाली बनूं, आप यूनिटी वाले बनो, हम शैतान के जैसे नहीं बने, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिटी में रखे थे सबको, हम सब एक थे, उम्मत पूरी एक थी, सहाबा एक थे, हम ऐसे बनेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है कहां से आऊंगा, मैं आगे से आऊंगा, और से सुनना, मैं आगे से आऊंगा। सामने पूरा खानदान बैठा हुआ होता है, तुम नमाज में खड़े होते हो, नमाज में ख्याल आता है तुम्हें कमर्शियल को जाना, स्टोपे और रफ्तानी तो आयत में बचाओ, कौन सा ना सारे ख्यालात आएंगे, तो याद करना अभी मर रही हूं मैं, अभी मरने वाली हूं, जल्दी अच्छी नमाज पढ़ो। दिल में क्या डालेंगे, अभी आखिरी नमाज। ये नुस्खा आपको संभालेगा इस चीज से। सामने खड़ा हुआ खानदान को लेकर, ओके, पीछे खड़ा हुआ, पीछे से उंगलियां, ओके, पीछे से उंगलियां, फिर उसके बाद सीधे तरफ आके खड़ा देता है, लेफ्ट साइड आके, सिर्फ 4 को नहीं करता है। ऊपर अल्लाह है, तेरी मजाल नहीं है, ऊपर अल्लाह है, तेरी मजाल नहीं है, नीचे सजदे हैं, तेरी वकार नहीं है, नहीं है, समझ गया बंदा। बस जब भी तकलीफ होती है, किसी भी जिस्मानी कहीं भी किसी भी तरीके से सजदे में गिर जाती हूँ, या अल्लाह मुझे तकलीफ हो रही है, तो करीब है ना, मुझे तकलीफ हो रही है, किसी भी बात से कुछ भी हो जाए, दिल में दर्द, भेजे में दर्द, कहीं भी दर्द, कुछ भी हो जाए, सीधा सजदा, अल्लाह अकबर, सुभान रब्बिल आला, तू आला है ना, तू बड़ा है ना। अब तुमने सजदे में गिरा के क्या बोली अल्फाज उस दिन, मैं क्या बोलना, क्या बोली तुम्हें, मैं गिर गई, खाना दो, मैं उठाई, तड़प गए, माँ क्या करी थी, इसका धड़ चला गया, ये खत्म हो गया, तुम्हारा धड़ खत्म हो गया, मैं उठाई नहीं, अल्लाह तू इसको उठा दे, तू कादिर है,
तू कुदरत रखता है, लाज रख ले एक बंदे की, उठा दे उसको, उठाया मेरे रब ने, उठाया मेरे रब ने, आज तक वो लाचार नहीं रही, हाथ नहीं उठ रहा है, मैं उठा दिए, अल्लाह का नाम उठ गया। तो यही बात है, ईमान तकवा मजबूत लेके आओ, ऊपर से नहीं रहेगा, नीचे नहीं रहेगा, तो आप क्या करना, फौरन सजदा करना। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर उसके बाद कहता है, तो उनमें से अक्सर लोगों को शुक्र करने वाला ना पाओगे। अल्लाह तुम सुन रहे हो, किसको बोल रहा है, अल्लाह ताला को। तो अब क्या करोगे तुम, शैतान को जीत दोगे या अल्लाह को जीत दोगे, किसकी जीत कराओगे, अल्लाह ताला की जीत कराओगे। नाशुक्री जब होगे तो फौरन बोलना, मैं उसकी जीत करा रही हूँ, नाशुक्री करा के, मैं नाशुक्री उसकी करा रही हूँ, मैं अल्लाह ताला का शुक्र करूँगे। ना नाशुक्री होते ही मुंह से निकल भी जाता है, निकल जाने दो, निकल गया हो गया, पकड़ नहीं सकते। अल्लाहुम्मा फ़रली अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व इबादतिक। नमाज में गलती हो गई तो उसके मुंह तोड़ जवाब क्या है, उसकी लाख कैसी पड़ती है और 2 सजदे पड़ते हैं, नमाज में गलती हो गई तो। ठीक है, फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं यहाँ से निकल जा, ज़लील मरदूद होकर उनमें से जो तेरे पीछे लगा, अलबत्ता जरूर जहन्नुम को भरूंगा तुम सबको, जो तेरा साथी है उसे भी डालूंगा और तुझे भी डालूंगा। प्लीज डांस अगर बच्चे करते हैं तो उनको रोको, शयातीन नंगे होकर उनके साथ नाचते हैं, बच्चों को नहीं मालूम होता है, औरतों को नहीं मालूम होता है, वो शयातीन की चीजें हैं, उन चीज से बचो। गाना बजाना, गाने भी आप बहनें सुनती हैं, अब डालकर कोई क्या कहते हैं, अल्लाह ताला बोलना नहीं आ रहा, अल्लाह ताला मुझे सीरियल्स वगैरह देखते हैं, म्यूजिक भी आती है, देखते हैं, ये शयातीन की चीज है, रुक जाओ वरना अल्लाह ताला उनके साथ जहन्नुम में शैतान के साथ डाल देगा। नौज़ुबिल्लाह। फिर आए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी हवा जन्नत में रहो, बस खाओ जहां से तुम चाहो, ओके। वाला तकरबा, करीब भी ना जाना, फिर यहाँ पे आ गया दो तकरबा, करीब भी जाना, आज शजरा जाओगे तो जालिम हो जाओगे। वसवसा, वसवसा डाला शैतान ने, वसवसे की दुआ कहाँ पे, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास जिन्नती वन्नास। ठीक है, शैतान ने उसको वसवसा डाला और उनके दिल में, ताकि उनके 70 की चीजें, 70 रुपए की नहीं, 70 रुपए की नहीं, शर्म गाएं, 70 की चीजें जो उनसे पोशीदा थी, उनको नहीं मालूम था मर्द है औरत है, पोशीदा थे, नहीं मालूम था, एक दूसरे को नहीं मालूम था। तो जैसे उन्होंने वो चीज को छुआ, चका चका चका, सिर्फ उन्होंने चका, वो आगे आएगा मैं बताती हूँ। ठीक है, जाहिर कर दी, वो बोला तुम्हारे रब ने तुम्हें उस दर्द से मना नहीं किया था। अल्लाह बात करने लगे किससे, आदम अलैहिस्सलाम, हवा अलैहिस्सलाम से, मगर इसलिए कि कहीं तुम फरिश्ते हो जाओ। शैतान क्या बोला था, तुम फरिश्ते हो जाओगे, हमेशा रह जाओगे जन्नत में, इसलिए अल्लाह ताला बोल रहा है कि तुम नहीं खाओ, खा लो जी, हमेशा जन्नत में रह जाती। नहीं तो देखो अल्लाह निकल जाता है, अल्लाह ताला के खिलाफ सिखाया, जालिम, हराम किया उसने, और उनसे कसम खाया मैं बेशक तुम्हारे लिए खैर खा हूँ। हमें क्या बोलता है, सुस्ती बहाना, क्या बोलता है शैतान ने, गफूर रहीम, जरा की बात पढ़िएगा, बैठो जी, जालिम नहीं है अल्लाह ताला, गफूर रहीम है। क्या फुसला रहा है शैतान, फुसला रहा है, अल्लाह की तारीफ करके करता है, ईमान वाले को नमाजी से करता है, बेईमान वाले को डिस्को कुचल बोलता है और कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद बस उनको माइल कर लिया धोखे में, जब उन्होंने दरक छक्का, गौर से पढ़ो, फलम्मा ज़ाक़ा ज़ाइक़ा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत ज़ाक़ा शजरा ज़ाइक़तुल मौत ज़ाक़ा शजरा ज़ाक़ल जन्नह ज़ाइक़तुल जन्नह ज़ाइक़तुल हुब्बि अल्लाह ज़ाइक़तुल हुब्बि मुहम्मद रसूलुल्लाह ज़ाइक़तुल कुरान ज़ाइक़तुल सलाह ज़ाइक़तुल आमालु बिन दुनिया वल आखिरह बिन नियतों पे दारोमदार। आगे नहीं बढ़ सकती, मेरा दिल कहीं और जा रहा था, ओके, मुझे जो रोक दिया अल्लाह ने। चका जाकर खाए लीजिए, खाए लीजिए, खाए लीजिए आदम अलैहिस्सलाम, तभी आपने पढ़ा था ये,
कभी नोट करे थे? नहीं। अल्लाह जब दे रहा है ना, बहुत दे रहा है, बहुत दे रहा है इल्म, इतना दे रहा है कि अपने चका है, चका है। चकने से उसके बाद क्या सजा मिलती है देखो। अब करीबी न जाना में बोले, आप करीबी न जाना, ओके? चकना नहीं, क्या जरा 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 इनकर को जरा कर लेंगे बात, स्टाइल कर लेंगे बात। अब क्या एक दो मरतबा भी छोड़ो ना, कैमरा मैन तो पूरे तो लेडीज ही चका चका चका, ओके? ख्याल रख लेना। बिस्मिल्लाह। उनकी इनकी 70 की चीजें खुल गई, वो अपने ऊपर जोड़ जोड़ कर रखने लगे। 70 छुपाने के लिए जन्नत के पत्ते, बड़े बड़े पत्ते, एक पत्ते जैतून के, और उनके किसके पत्ते हैं? बड़े बड़े पत्ते हमारे जान की अल्लाह ताला जब देख रहे अल्लाह ताला, शुक्र अल्लाह ताला, उन्हें पुकारा। जब मैंने उन्हें उस दर्द से मना नहीं किया, मैंने मना नहीं किया, अल्लाह की जोर की आवाज है, जोर की आवाज है अल्लाह ताला की। जब मैं मना नहीं किया और कहा था नहीं तुम्हें, तो बेशक शैतान तुम्हारा बुला दुश्मन है, ये हमें कहा जा रहा है। कहा नहीं मैं तुम्हें, हम सब माफी मांगते हैं। कहा नहीं तुम्हें, कहा नहीं था, वो खुला तुम्हारा दुश्मन है। उन दोनों ने कहा, ऐ हमारे रब, ज्यादा से ज्यादा हमारे माँ बाप ने पढ़ा है, हम पूरे सजदे में बार बार दो चीजें लाई हूँ बड़ी हथियार, दो चीजें लाई, अगर एक बोल सकूंगी आज ये मेरी अल्लाह आलम, ठीक है? उन्होंने दुआ पढ़ी। अब हमने सूरे बकरा में पढ़े थे, एक दुआ मांगी उन्होंने, अल्लाह ने दुआ कबूल कर लिया। नहीं मालूम कौन सी दुआ, आलिमों को मालूम, लाओ पहुंचाओ दो लोगों को, ये दुआ पढ़ी होगी, याद करो जिसको याद नहीं। रब्बना ज़लमना, हमने जुल्म किया, अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। देखो हमारे बाप को, आदम अलैहिस्सलाम बाप को, उन्होंने कितना गौर किए। अल्लाह ताला ने कहा तुम जाओगे करीब तक़रब शजरा, जाओगे तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। राइट राइट, गॉट इट, सी द वे हाउ जा रहे हैं हमारे बाप। उन्होंने कहा ओके, अब आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह को कहते हैं बेशक मैं जालिम हो गया, मैंने कहा ना जालिमों में से हो जाओगे, मैं जालिम हो गया, मुझे माफ कर दे। ये अंदाज से मैं दुआ मांगती, लोग बोलते बाजी तुम्हारे इतने इतने दुआएं कैसे कबूल हो जाती, ऐसे बड़े बड़े कैसे कबूल हो जाता है। मैं वो अंदाज पकड़ती हूँ वहाँ पे, अल्लाह ताला कुरान करीम में किस लफ्ज़ को क्या कहता है उस तरीके से मैं मांगती हूँ, ठीक है? ये समझ में आ गया? अब कहते हैं ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर तूने हमें ना बख्शेगा, हम पर रहम ना करेगा। आज मैंने नीलूफर बाजी के भाई का इंतकाल हो गया, तो मैंने उनको कहा दुआ करो कि अल्लाह रहम करे, अगर रहम नहीं करे सब बेकार, अल्लाह सब पे रहम करे, जितने मरे हैं सारे सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे रहम करे, जितने जिंदा हैं उन पे भी रहम करे अल्लाह ताला, तो हम जरूर खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। फरमाया औलू औल, तुम उतरो, उतरो यहाँ से। कब ये दुआ कब मांगे? अब कंफ्यूजन लोगों को, ये दुआ कब मांगे? आसमान पे नहीं, कब? कहाँ मांगे? मक्के में मांगे, मक्के में मांगे। ये बात में बात कंटिन्यू जाता है, लोगों को समझ आती नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने गलती करने के बाद उतरो उतरो गेट आउट, मैंने लड़की को क्या कहा? गेट आउट। कहाँ से सीखी मैंने? कुरान करीम से। अल्लाह ताला निकलो निकलो जी, ऐसे निकलो जी, हर किसी को नहीं बोलती। इतना सिखाने के बाद फिर बोलेंगे बिद्दत करेंगे, आएंगे पैर पड़ेंगे, तो अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात है। बिस्मिल्लाह, ठीक है? फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं? उतरो उतरो यहाँ से। बाद में एक लफ्ज कहते हैं अल्लाह ताला, बाज के दुश्मन होंगे, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, तुम मेरे दुश्मन हो, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, क्यों? मैं जब तक अच्छा करती रहूंगी तुम्हारी अच्छी होगी, ये तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं बोला ली बना है। देखो क्या कुरान पढ़ा थी कि नहीं मालूम, देखो हमने ऐसा बोली, मेरे दुश्मन, मैं दिल में कहती, तूने कहा ना बाज के दुश्मन, ला इलाहा इल्लल्लाह, छोड़ दे, ठीक है? हम तुम भी जब तक मेरे पास अच्छे रहोगे। अब वो बच्चे का कितना इलाज हो, शायद इनका वो होता है, काम खत्म, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है जाओ जाओ, काम हो गया जाओ।
ہو گیا ختم, کم نکل گیا. میں کیا کروں, باز باز کے دشمن, میں دشمنی کروں, جو ابھی تمہارے امان تمہارے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا. تو اللہ نے کہا ہے اگر کوئی دشمنی تمہارا شوہر تمہارے سے کر رہا ہے, تمہارے بیویاں شوہر سے اگر کر رہے ہیں, بچے ماں باپ سے اگر کر رہے ہیں, ماں باپ بچوں سے اگر کر رہے ہیں, تو یہ حقیقت ہے ایک دوسرے کے دشمن اللہ نے کہا ہے. اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت معین تک ٹھکانا ہے, سامان دیا ہے اس کا ایک وقت تک کا. قال فرمایا اس میں تم جیو اور اسی میں مرو. دیکھا, یہاں سے کوئی جنت کو نہیں جاتا, جیو اور اسی میں مرو, اور تمہیں وہاں سے لے جائیں گے, ایک بار اٹھایا جائے گا. اے اولاد آدم, بولو جی جی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے نا, چلو اب اسٹارٹ کرو. اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں, یا بنی آدم, یبن آدم, اے آدم کے اولاد, جی اللہ سبحانہ تعالیٰ. میں کہتی ہوں جب بھی الفاظ آتا ہے جی اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ پکار ہے آدم کے اولاد سن. میں کہتی ہوں جی اللہ سبحانہ تعالیٰ, آپ بھی ٹھیک ہے, جی اللہ سبحانہ تعالیٰ. قد یقیناً ہم نے تم پر اتارا لباس. آج ایسی ٹاپک ہے سج کر کیوں میں نے تم کو سجا رہی ہوں. یہ لباس جو ڈھانک لے تمہارے ستر, ڈیپ نیک پہن کر ساڑی لٹکا کر نہیں, تمہارے ستر جو آدم ہوا کے جو کھل گئے. کیا ٹاپک ہے, میں اس لیے دعوت رکھ دی اللہ نے, دعوت رکھ دی, میری آنکھوں میں روشنی دے دیے. الحمدللہ دعوت ہو گئی آج. جو ڈھانکے تمہارے ستر, زینت ہو, زینت تمہارے بنگڑیاں پہنے ہیں, گوٹی ڈالے ہیں, یا مہندی چھڑائے ہیں, یا جھمکا ڈالے ہیں, یا کہیں کچھ لٹکائے گلے میں, پیروں میں جو کچھ ڈالے ہیں, کچھ بھی ہیں, کپڑے ذرا رنگ برنگ کے پہنے ہیں, کچھ ہیں, یہ پوری زینت ہے. زینت ہے ہر نماز کے لیے. بات یہ ٹاپک میں نہیں بتا رہی, قرآن کہتا ہے ہر نماز کے لیے, غیر مردوں کے لیے. اس کا شوہر نہیں, وہ بھی نماز کے لیے, مگر ہر مرد کے لیے. ماں باپ کے ستر کس نے کھولا, شیطان نے کھولا. اگر آپ کے ستر کھل رہے ہیں, ادھر ادھر کا دکھ رہا ہے, بیک نیک کا دکھ رہا ہے, میرا بھی دکھاتا ہے زمانہ بیک نیک, ساڑی باندھ کے کیوں جاتے تھے, اللہ معاف کرے, بال کھلے رکھ کے لے جاتے تھے شوہر سے, تو طلاق. اب بولتے ہیں ہندی طلاق, ٹھیک ہے طلاق, طلاق دے دیں گے, آؤ نہیں آتے طلاق دے دو جی. کیوں, ابھی نہیں ہے ڈر, اللہ کا ہے. پہلے کس کا ڈر تھا, انسانوں کا ڈر تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زینت ہو اور پرہیزگاری کا بھی لباس ہو. کپڑوں کا لباس ہو اور پرہیزگاری کا لباس ہو, دونوں لباس ہو. سب سے بہتر ہے پرہیزگاری کا لباس, یعنی کہ وہ نہیں جاتی با وہاں پہ, وہ گناہ کا کام ہے با, میں نہیں کرتی با, وہ پرہیزگاری ہوتی. جو اللہ کرنے کے لیے کہتا ہے نا, وہ پرہیزگاری کا لباس ہے. جو منع کرتا ہے نا, وہ چھوڑتے ہیں نا ہم لوگ, وہی پرہیزگاری کا لباس ہے. ٹھیک ہے, یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. غور کرے اللہم یذکرون, تم غور کریں, غور کر کے دیکھو تمہارے ماں باپ کو ننگا کیا, تمہارے ماں باپ کو ننگا کیا ہوا ہے. آج جو تم ننگے جا رہے ہو نا, اس کے مرید بن کے جا رہے ہو. اور ننگے جو جا رہے ہو, کبھی جیگنگز, کبھی لیگنگز, کبھی ٹائٹس, کبھی اونچا, کبھی گھٹنے دکھ رہے, کبھی پائل پہن کے دکھا رہے, کبھی چھلے پہن کے دکھا رہے. یہ سب شیطان ہے. تمہارے ماں باپ کو ننگا کیا ہے, آپ کو بھی ننگا کرے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک نشانی ہے. ہمیں بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, یا بنی آدم, وہ اتنا بڑا رب ہمیں بات کر رہا ہے. اے اولاد آدم, کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے. جیسے اس نے نکالا تمہارے ماں باپ کو, آدم ہوا کو جنت سے, ان کے لباس اتروا دیے, ان کے لباس اتروا دیے. تمہارے ماں باپ کے بٹوارا نہیں کرو, جو روزہ ہے پانی پی کے رہ جاؤ, پھر باقی ختم کر لیجیے. ماں باپ کی بات آ رہی ہے یار, ماں باپ کے مر گئے بول کے ہم روتے ہیں. وہ ماں باپ یہاں دو, یہاں پہ پانی دو, ماں پی جاتی ہو, جلدی دو. روزہ لو, لو سوری غلطی ہو گئی میرے سے. ٹھیک ہے, اے اولاد آدم, کہیں شیطان تمہیں بہکا نہیں دے. جیسے اس نے نکالا تمہارے ماں باپ ہوا علیہ السلام, آدم علیہ السلام کو جنت سے, ان کے لباس اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ظاہر کر دیے. بے شک تمہیں دیکھتا ہے وہ,
वो उसका कबीला भी तुमको नंगा देखता है, उस जगह से जहाँ तुम उन्हें नहीं देखते। और बेशक हमने शैतानों को उन लोगों का रफीक बना दिया है। यानी मतलब कहने का अल्लाह ताला कहते जब तुम कपड़े बदलते हो, लड़के लड़कियां जो भी कपड़े बदलते हो तो पूरा कबीला देखता है, जपते रहते हैं देखने के लिए, अंदर घर के अंदर घुसने के लिए जपते हैं। आज का चैप्टर जो सुन के अमल करे, जन्नत के दरवाजे अल्लाह खोल देंगे। बड़ा अजीम चैप्टर है ये। कम्युनिकेशन अल्लाह ताला की बातचीत है, बात कर रहे हैं अल्लाह ताला हमसे, हमसे, हम कमजोरों से, हम बदकारों से, हम गुनहगारों से अल्लाह ताला बात कर रहा है हमें कि अच्छे कपड़े पहनो, ओढ़ के रहो, जीनत करो। माँ बाप को ऐसा फिसलाया, तुम्हें फिसला देगा। शैतान क्या करेंगे अल्लाह ताला, देखो यहाँ पे क्या कहा अल्लाह ताला ने, उन लोगों का रफीक बना दिया। अल्लाह क्या करता है, अगर ऐसा करेंगे, कपड़े पूरे नहीं पहनेंगे, अधूरे रखेंगे, तो अल्लाह ताला क्या करेगा, शैतान को दोस्त बना देगा। ईमान नहीं लाते उन लोगों को, जो ईमान नहीं लाते उनको उनका दोस्त बना देगा। और जब वो बेहयाई करे तो कहीं हमने अपने बाप दादा को इस पर पाया। लोग हम बोलती ना, अल्लाह ताला पूछ रही बेहयाई क्या उनके माँ बाप ऐसे थे, क्या हमने हुक्म दिया था, नहीं ना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो उनसे, अल्लाह बेहयाई का हुक्म नहीं देता। ला यअमुरु बिल फहशाई वल मुनकर कहीं आता है, सिर्फ फहशा आता है, फहिश काम, बेहयाई के काम, नाच गाना, फैशन, सारा वगैरह बेहयाई है, फहशा काम। फिर अल्लाह ताला कहते वो बात लगाते हो अल्लाह पे जो तुम्हें नहीं जानते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रब ने मुझे इंसाफ का हुक्म दिया है। और अपने चेहरे हर नमाज के वक्त, गौर से सुनना, अपने चेहरे हर नमाज के वक्त सीधे करो, सीधे करो, यानी कि धो भी, वुजू भी करो, साबुन से भी धो। चेहरे आपके क्या करो, सीधे करो और उसे पुकारो, खास उसके उस हुक्म के फरमाबरदार होकर, जैसे तुम्हें पहले पैदा किया था तो दोबारा भी मैं पैदा करूंगा। ये खानदान एक परी को हिदायत दी, अल्लाह ने एक परी को हिदायत नहीं दी, हम में से चंद औरतों को हिदायत दिए। चंद औरतों को अल्लाह ताला ने चंद लोगों को हिदायत नहीं दिए। उन्होंने अल्लाह के सिवा शैतानों को अपना दोस्त बना लिया है। उनको हिदायत नहीं मिली, वो शैतान के दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड यार, चटी यार है, और गुमान करते हैं तो बेशक हिदायत पर है। ए औलाद आदम, जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला निकाल के दे दो। मोहम्मद क्या देखो, मोहम्मद जी, मोहम्मद जी बेटे, ठीक है। अब यहाँ अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो शैतान तुम्हारा दोस्त चटी यार है, जहाँ तुम जाओगे वो आएगा, मैं कभी भी नहीं छोड़ेगा, टॉयलेट में भी नहीं छोड़ेगा, खाने की जगह भी नहीं छोड़ेगा, हम बिस्तर में भी नहीं छोड़ेगा, कहीं भी नहीं छोड़ेगा, इसे ना यार बना के छोड़ेगा। अल्लाह ताला खुद ही एक शैतान को भेजते हैं जो उसका दोस्त बन जाए। कुरान में लिखा है, लिखा है, मानो कुरान में लिखा है। फिर और गुमान करते हैं वो बेशक हिदायत पर है। औलाद आदम, जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी जीनत, अपनी जीनत हर नमाज के वक्त इख्तियार करो। नमाज कैसे पढ़ती, गंदी नाइटी एक और नियोड़े नमाज पढ़ ली है, ये नमाज नहीं होती। हर नमाज के लिए जीनत इख्तियार करो। यही मैंने आज जीनत की है, अल्लाह ताला के लिए, दूसरों के लिए नहीं, अल्लाह ताला के लिए मैंने जीनत को इख्तियार करो। हर नमाज के वक्त इख्तियार करो और खाओ और पियो। चलो खत्म करके हम आयत, हम भी खाएंगे और पिएंगे। ओके, पहले जीनत इख्तियार करें, नमाज पढ़ेंगे, फिर खाएंगे पिएंगे। देखो हम सुन रहे हैं अल्लाह ताला की बात, ऐसा लगता है आप बोल रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। जैसे आप कुरान पढ़ती हूँ ना, अल्लाह ताला कुछ बोलते हैं तो अल्लाह तुम बोले, मैं करी, मैं चल रही हूँ तो कबूल कर ले। ठीक है, अल्लाह ताला कहते हैं ऐ औलाद आदम, जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी जीनत हर नमाज के बाद, हर नमाज का है, हर नमाज का है अल्लाह ताला ने, हर नमाज का है अल्लाह ताला ने, हर नमाज के वक्त इख्तियार करो, मगर मत सिर्फ जुम्मा के लिए करते माशाअल्लाह, और खाओ और पियो, मत सिर्फ जुम्मा के लिए करते हैं। मेरे मेरे भाई लोग भी, मेरे शौहर लोग भी, माशाल्लाह मेरा बेटा हमेशा इख्तियार करता है क्योंकि वो दीन पे जा रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और बेजा खर्च ना करो, फजूल खर्ची नहीं करो। बेशक अल्लाह फजूल खर्च करने वालों को दोस्त नहीं रखता।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसने हराम की है अल्लाह की वो जीनत, जिसने हराम की है अल्लाह की जीनत, उसने अपने बंदों के लिए निकाली पैदा की है ना पाक रिज़्क़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें ये दुनिया की जिंदगानी में उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह जिस पे ईमान लाए हैं दुनिया में, खास तौर पर क़यामत के दिन उन्हीं का हिस्सा है। उसी तरह हम आयतें खोल के बयान करते हैं और हर गिरोह के लिए जो जानते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें मेरे रब ने तो हराम करार दिया है बेहयाइयों को, उन पर जो जाहिर है जो पोशीदा है, गुनाह और सरकशी नाहक को, और ये कि तुम अल्लाह के साथ शरीक करो जिसके उसने कोई सनद नहीं उतारी, और ये कि तुम अल्लाह पर लगाओ वो बात जो तुम नहीं जानते, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करो, वो अकेला है। फरिश्तों ने कह दिया है यहाँ पे कि तू जितना हमें कहता है उतना ही इल्म आता है, जितना नहीं तो नहीं आता है। कोई आलिम बोले कि मुझे सब मालूम, तुम्हारा पूरा मैं इलाज कर डालती हूँ। गवाही के साथ बोलना आज तक मैं अल्लाह के लिए, मैं अगर मैं खताकार गुनाहगार हूँ तो मैं भी माफी मांगती हूँ। क्या मैंने आज तक मैंने आप लोगों को कभी कहा मैं करूंगी, मैं पढ़ाऊंगी, मैं तुम्हारा इलाज करूंगी, मैं दुआ करूंगी? मैंने कभी कहा नहीं। आप में से कोई है मुझे मुझे दलील दे सकते हैं, गवाह हो सकते हैं? मैंने नहीं कहा, क्योंकि डर है अपने रब का। जो भी मैं करती हूँ मेरे अल्लाह के हुक्म से होता है, वरना उसके हुक्म के बगैर फरिश्ता भी कोई हिला नहीं सकता। मैंने सजदे के लिए उस बच्ची को कहा तू कादिर है, तू कुदरत रखता है, तू शाहिद है, तू जिंदा है, तू कर। हर दुआ क्या मांगोगे आप? तू कादिर है, तू कुदरत रखता है। हमें हम तो आदम तेरे अदब भी नहीं आया कि तेरे सजदे में करके तुझे बोलते जी अल्लाह अल्लाह अकबर। शुक्र अल्लाह हम सजदा भी करके नहीं करे कि शुक्र अल्लाह हमारे हर जो हमने जुल्म किया अपने जानों पे हमें भी बख्श दे, जैसे तुमने हमारे माँ बाप को बख्शा, आदम हवा अलैहिस्सलाम को, सारे बंदों को तू बख्श दे। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत जो जो परेशानियां दुनिया में, खबर में, हशर में, सब तो आसान कर दे। वो औलादों से जो तड़प तड़प के तुझे पुकार है, शोहरों के लिए, बच्चों के लिए, जिंदगियों के लिए, रिश्तों के लिए, हयात के लिए, सेहत के लिए, हर चीज के लिए तू जानता है अल्लाह। तू सब कुछ अता कर दे, तू कादिर है, मैं इलाज रख ले अल्लाह। मैंने तुझे से मांगना सिखाई हूँ, लोग आके मुझे ना पूछे, जैसे तुमने कहा है शिर्क नहीं करते अल्लाह, शिर्क नहीं करते अल्लाह। तो आजमाइश माफ कर दे, हम सब की आजमाइश को माफ कर दे। वास्ता तेरे नाम का, तेरे नाम का वास्ता, तेरे आंखों का वास्ता, कसम तेरे कानों की, कसम तेरे जलाल के कान की, तू सुन लेना रब्बी, तू सुन लेना रब्बी, तू सुन लेना रब्बी, रब्बना तू सुन लेना। तेरी कसम कानों की, तेरे तेरी कसम तेरे आंखों की, कसम देख हम चलते आते तेरे कदमों की कसम अल्लाह, तू बाहें फैलाता है तेरे हाथों की कसम अल्लाह, अल्लाह तेरे नूर की कसम अल्लाह, अल्लाह तेरे जलाल की कसम अल्लाह, अल्लाह तेरे शान की कसम अल्लाह, अल्लाह तेरे हिदायत की कसम अल्लाह, तेरे तकब्बुर की कसम है, तकब्बुर, तकब्बुर वाला रब, अल्लाहु अकबर। अल्लाह तकब्बुर वाले है, दुनिया में आखिरत में मौत से आखिरत तक हमें अपनी रहमत में छुपा ले अल्लाह। तू नूर अता कर अल्लाह, आजादी जाने कब्र में हशर में नूर अता कर अल्लाह, तू रहमत अता कर अल्लाह, तू रहमत अता कर अल्लाह, तू बरकत अता कर अल्लाह। रहमत में छुपा ले, शैतान से दूर कर दे, गुनाहों से दूर कर दे, मुशरिक मुगरिब की तू दूरी कर दे, अपनी रहमत में छुपा ले। ना हमें माँ है ना बाप है, तो अपनी रहमत में छुपा ले। मेरा कोई नहीं, तो रहमत में छुपा ले। बेनीज के पास खड़ी हो, तेरे दर के पास खड़ी हो, तुझसे भीख मांगती हो, सबके लिए मैं मांग रही, सबको हिदायत भी दे दे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हिदायत तौफीक अता कर दे, हिदायत इरशाद भी अता कर दे। आज दे दे अल्लाह, तू सबको दे दे अल्लाह, सबको
کو تو دے دے اللہ، تو سب سے بہتر دینے والا، سب سے اعلیٰ دینے والا، سب سے بلند دینے والا. ہم خیرات دیتے بہت دیتے تو 1000 بھی دے دیتے اللہ. تو اتنا بڑا ہے رئیس، تیری دے تیری شان کے حساب سے دے اللہ، تیری شان کے حساب سے دے اللہ. تو قبول کر دے اللہ، ہم سے پیار کر دے اللہ، ہمیں معاف کر دے اللہ، رحمت میں چھپا لے اللہ، ہم ننگے رہتے قیامت میں چادر ڈال دے اللہ، ان کے قدموں میں چھپا لے اللہ، برائیوں سے بچا لے اللہ، ہر برائی سے بچا لے اللہ، ہر برائی سے بچا لے اللہ. اللہ تو پیار کر لے اللہ، تو پیار کر لے اللہ، تو مسکرا کے دیکھ لے اللہ، تو پیار کر لے اللہ. ہمارے سر پہ قدم رکھ دے اللہ، ہمارے سر پہ قدم کا سایہ رکھ اللہ. شیطان کو دوست نہیں بنا اللہ، تو دوست بن جا اللہ. انت ولي في الدنيا والآخرة، انت ولي في الدنيا والآخرة. اللهم آت نفسي وتقواها وزكها انت خير من زكاها وانت وليها مولاها. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مشرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ